Okay, guys, hello, welcome back to another session of the trading psychology. And I hope you guys already, attended the previous session, which was about the trading. Again, it was a trading psychology, but it was different topic. Today we are going to explore a couple of basic area and also like couple of higher side of the trading psychology, which is emotional intelligence. Am I audible? Everything is clear, guys? Yeah. Yes, sir. Okay, good, Yes. good. So, actually, like just before starting, just wanted to know like what is your expectation for this session? See, like why I'm asking this one. Until you are not clear, na, like why you are joining this session. I mean, it will help you. Anyhow, it will help you because consciously, subconsciously, you are listening something and you are trying to learn the things. But just wanted to know like what is your expectation? Like what you are expecting from me for this session actually? Maybe one of you or two of you can explain Actually, me. uh, Yeah, Girish, please. thing is that my actually while trading, I am the loss of fear is more in me since Got it. that I am not able to control. And if it's in going in a gain, maybe the market will be bullish. But if we see, कि, चलो, we are gaining less, then we put a means we hit the target there only. So Mm-hmm. that part and the fear part both are very hand to hand. Absolutely, So that absolutely. Yeah. I am to clear. That's all. Correct, correct. And I think I believe, strongly believe this is a universal problem. It's not about your problem and all. It's an universal Yeah. problem actually. Okay. I mean, I truly Mm. believe that one. Even before few days, I was talking to Ian also. There is a particular Okay. setup, and he was Ian. I'm sorry if I can disclose that discussion. He was telling about I saw the trend, but I was in a FOMO. Okay, and he said Mm. that I was trying to capture that rally, but I could not because I was in a FOMO. So yeah, obviously Yeah. these are very, very generic Mm. things, and Mm. that happens every day in our life. I think Pravan also. Mm. Hi Pranav, welcome. So yeah, it will be a good topic we are going to discuss today. Mm. Just before beginning, as you said, like you have a certain intention that you want to know, like how to manage our, like how to control our emotion. Specifically, Mm. I'm saying control our emotion, but I'll clarify it later. And how to trade efficiently as a professional trader or like in during the trading session. I mean, it doesn't matter like if it is day trading or it's like swing trading or like particular like positional trading. See, because in positional trading or swing trading also, like for example, you made a position today and all of a sudden next day or maybe next week the market is going down I mean Yeah. certain percentage particular stock and all, like so definitely that will be a Mm. challenging moment for us. And Mm. like to maintain that, it's not about day trading something like that, but again to stay in that trade, though we have planned according to that, whatever the stop loss, whatever the like target we have, but still when we see the negative figure in our account or in our like position portfolio, then definitely it's an emotional moment for us, right? Mm. And I mean, I mean, most of the time when you talk about, I mean, the trading psychology and all, like the priority of the things we talk about, control your emotion and automate it, or maybe like do other things and all, like follow the chart or do the like risk management, all other things and all. But the problem is that whatever you're talking about, now those are we are talking about the outside in the sense the environment which is actually impacting our emotion, right? But we are not trying to see our emotion, what is actually happening inside us, like, or how to maintain that emotion, how to like stick to our strategy and all the other things. We are not focusing on that one. That is the main drawbacks. And because of that only, we are talking about the emotion. Because trading, we know like everyone know that one like 80% is emotion and 20% is strategy, right? The emotion in the sense trading psychology, and 20% is the market, whatever the things, tools and all other things where whatever the outside is happening, we are talking about that one, right? So अच्छा, एक बात पूछना था, everyone is good in Hindi also in this group, or like you have an issue, maybe we can continue English, or maybe we can come Hindi and English if you are fine. What about Anil? Fine, fine, fine. Okay, and Both. Pranab?
both are okay. ओके फाइन फाइन, थैंक यू या। सो बेसिकली ये क्या होता है प्रॉब्लम कि ट्रेडिंग में, मतलब ट्रेड में एंट्री, जिस टाइम पे हम एंट्री करते हैं ना, उसी टाइम का ही प्रॉब्लम होता है एक्चुअली। क्योंकि उस टाइम पे हम जिस टाइम जो भी टाइम पे हम एंट्री कर लेते हैं ना, उसके बाद का जो इमोशंस रहता है ना, पहला तो है, देखिए मैं अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा ना, पहला पार्ट होता है प्रेडिक्शन होता है, राइट। इन मार्केट कोई भी आप डे ट्रेडिंग ले लो या स्विंग ट्रेडिंग ले तो पहले आप प्रेडिक्ट करते हो मार्केट को, मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन क्या होता है, राइट। एंड वंस यू आर इन ट्रेडिंग, लाइक यू आर ऑलरेडी पुट द ट्रेड, एग्जीक्यूट द ट्रेड, that is the probability game started, right? Probability, man, prediction is completed. We cannot, like, after that you cannot predict what is going on, right? Then the probability started actually. So both are important for in our life. And the more important is that prediction. The more you can predict it properly, like predict in the sense, if you are a technical analyst, or maybe you are technically, you understand the chart and all other things, you have to like go in certain level of your like emotions or like the prediction skills. So that emotion, why I'm adding emotion and prediction skill, that also I'll clarify later. But if you are going to that particular levels and like you are predicting particular script to execute that, to get into that one, and after that the rally in the sense whether it's a down or up doesn't matter, but the target or stop loss whatever you have, that one, the exit, once will execute and exit, up to that kind of emotion, that's a probability game started actually, right. So those things are very important in our whatever, whenever you are in trading actually, okay. So ये जो भी हम लोग डिस्कस किए ना, अभी एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला तो मैं पूछा था कि आपका इंटेंशन क्या है, जो कि आपने बताया कि ट्रेडिंग में लॉसेस होता है। और सेकंड आपने बताया कि जैसे कि इससे पहले भी मैं बात किया था कि फोमो के बारे में हम लोग बात किए थे। ये सारे चीज हम लोग बात करेंगे। इससे पहले जस्ट आई टेक ओनली 1 मिनट, आई जस्ट वांटेड टू टेल अबाउट मी। So if you know about me, I'll just come back. Yeah. So my name is Balkrishna Swain, and in group like TTL group, I have my like caption as trader within me। और ये कैप्शन में मेरा नाम का ही था, लेकिन मैं इसको किया क्योंकि मैं मुझे अच्छा लगता है वो नाम, तो मैं वो नाम वहाँ पे ऐड किया था। और यहाँ पे मैं एक टेक्नोलॉजिकल, एक मैनेजर, सीनियर मैनेजर के हिसाब से मैं एक टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करता था। आई थिंक आई कैन डिस्क्लोज द नेम ऑल्सो, दैट्स फाइन। सो वर्ल्ड बैंक वॉज माई क्लाइंट एंड आई वॉज वर्किंग फॉर वन इंडियन एमएनसी। बिफोर दैट ऑल्सो आई वर्क फॉर मास म्यूचुअल, विच इज लाइक ए म्यूचुअल कंपनी, इफ यू नो दैट वन mutual fund company. It's a very big US based mutual fund company, and right now they also established their offices and like the operations in India as well. Mass Mutual, if you know about that one. And like recently, if you are following me in the group, I also wrote a book. I'm an author of this Psychology of Trading, which is available on Amazon, and also like I gave some free copy to the community, so people might have like won that book. And recently, I went to the stockage, if you know, like the which is the, if you know about like the Opstra and stockage, the company, they are like giving lot of tools and all. So I went there. I meet, if you know about this Vijay Thakkar, and he is Mr. Reddy, who is the Opstra, Opstra, like he created the Opstra platform, the option analysis analytical platform. And I presented my book. So they really appreciate it. Actually, the book and the content of the book, so they really appreciate it. And moreover, like I am a trader. I'm a full-time trader. If you can, you might have seen my PNL. Every day I do trade. I don't skip because see, that's my thing. I don't want to lose the momentum of the market. So whatever the momentum is currently, previous momentum, previous day momentum, today's momentum, mostly I try to trade every day, except some personal things and all. And secondly, I also an like NLP coach, which is a life coach, and specific to trading psychology coach to maintain the trading psychology and all. So this is a small brief about me, and I'll come to the topic right now. So before that, anything you want to know, any particular area, particular questions you have? Otherwise, I'll continue the topic. I keep everyone on mute, so whatever you have questions and all, you can ask me. I mean, you can go through that questions and all. Otherwise, like I'll continue the topic. Please continue. Okay, good, Anil. Thank you. So,
जैसे मैं इससे पहले भी बात किया ना, थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि ट्रेडिंग में जो लॉसेस होता है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो लॉसेस होता है ना, जब हम लोग एक ट्रेड में एंट्री करते हैं, क्या हम सोचते हैं कि इस ट्रेड में मुझे लॉस करना है? डू यू थिंक कि मुझे ये ट्रेड में लॉस करना है, ऐसा कुछ हम लोग सोच सोच के ट्रेड लेते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है कि हम लोग सोचते हैं कि ये जो ट्रेड हम लोग एंट्री कर रहे हैं, एटलीस्ट जो एग्जीक्यूशन हम लोग किए हैं उसको प्रॉफिटेबल में निकाल निकल देते हैं हम लोग, राइट। बट मार्केट कंडीशंस हम लोग का जो थॉट है ना उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, राइट। मार्केट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स आर देयर, जो कि उस डाटा के आधार पर मार्केट रन करता है, राइट। सो जो भी होता है ना मार्केट, हम लोग के जो एक्सपेक्टेशन का हिसाब से मार्केट अगर नहीं होता है, उस टाइम पे हम लोग को लॉसेस हो जाता है, राइट। तो ये जो लॉस होने के बाद, इसमें तीन लेवल्स ऑफ लॉसेस में इसको बोलता हूँ। पहला तो लॉसेस होता है जो कैलकुलेटेड लॉसेस, जो कि हम लोग कैलकुलेटेड किए थे कि हम लोग मुझे यहाँ पे 1:2 भाई, या नहीं तो 1:3, जो भी हम लोग का एक्सपेक्टेशन था वो हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे मेरा एस एल हो गया तो एस एल हो गया, ठीक है। और सेकंड ऐसा होता है कि जो भी हम लोग एक्सपेक्ट किए थे ना उससे थोड़ा ज्यादा हो गया। तो ज्यादा हो गया मतलब क्या है कि जैसे कि मार्केट गैप डाउन हो गया, या जो भी हम लोग का एस एल कैलकुलेटेड एस एल था कुछ स्पाइक लगा, एस एल के बाद में जाके बहुत नीचे जाके हम लोग का एस एल ट्रिगर हो गया, उसमें से ज्यादा लॉस हो गया। और थर्ड केसेस क्या होता है कि एक्सट्रीम केस, जो कि मान लीजिए कि बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, जो कि हम लोग को कैपिटल को भी वो डैमेज कर दिया। तो ये तीनों केस में से हम लोग कंफर्टेबल किस में है? मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कंफर्टेबल है हम लोग का जो टारगेटेड एसएल, मतलब जो कैलकुलेटेड एसएल, क्योंकि वो कैलकुलेटेड है, वो हम लोग का रिस्क एपिटाइट का अंदर रहता है, तो हम लोग उसको ले सकते हैं, इजीली ले सकते हैं। लेकिन बाकी जो दो केसेस होता है ना, वहां पे जब हम लोग को चोट आता है, जिस टाइम पे हम लोग उसमें डैमेज आता है ना, उस टाइम पे हम लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। एक्चुअली एग्रेसिव मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हम लोग का एक इंटरनल पैटर्न रहता है कि हम लोग को कोई अगर हम लोग को डैमेज कर दिया ना, तो हम लोग उसमें इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। तो ये जो रिएक्शन पैटर्न्स होता है ना, ये हम लोग को प्रॉब्लम में रखता है एक्चुअली, जो बाकी अदर केसेस होता है। लेकिन मुझे वहां पूछना है आपको, एक बात पूछना है कि बाकी जो अदर केस बोले, मैं भी जो भी एग्जांपल दे, एक तो है हम लोग का कैलकुलेटेड एसएल है, जो कि हम लोग एसएल ले लिए क्योंकि हम लोग को 1:3 टारगेट था, 1:2 टारगेट था। जो भी टारगेट था हम लोग इसके हिसाब से हम एसएल ले लिए, वो कैलकुलेटेड है, 10 फाइन एक्चुअली। और प्रॉफिट के बारे में तो बात नहीं करूंगा कि उसमें हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है प्रॉफिट में। कभी कभी होता है, ग्रिड होता है, लेकिन वो भी मैनेजेबल है। उसको अगर थोड़ा सा भी हम काम करेंगे ना, मैनेज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे होता है जिस टाइम पे आप लोग कैपिटल वाइप आउट होता है, यानी तो कैपिटल में बड़ा डेंट आता है, उस टाइम पे प्रॉब्लम होता है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, उस टाइम पे आप मुझे बोल सकते हो कि जो हो गया, जो भी केसेस हुआ, क्या हम लोग उसको स्टॉप कर सकते थे? जो भी आपका लाइफ में कोई भी एक हुआ है, उस इवेंट को लेके बोल सकते हो आप कि जिस टाइम पे बड़ा डेंट हुआ था, उस टाइम पे क्या आप इसको स्टॉप कर सकते थे? कोई भी एक बोलिए। अगर कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए आपका, जो भी बड़ा लॉस हुआ है, इज हाँ इट मतलब इन आवर कंट्रोल? there is always a moment where you can stop the spiral or the tilt, you know, यस, ऑफ कोर्स। like We so. keep on means if that cases sometime happens, then our mind says, it will reverse also. So the dent goes on. Means that is the एग्जैक्टली, problem. Yeah, for me, more than that, it's like, let's say my loss. I mean, I've traded and I've took a system SL and I'm राइट, sitting राइट, at, let's Mm. say, एग्जैक्टली। 3,000 rupees loss example, which is a system Mm. SL. I mean, Yeah. सिस्टम even we ऐसे, all know राइट, its राइट, Yeah. probability and all, right? But once एग्जैक्टली, you see the Yeah. red figure, you get upset that why did the Mm. market take my stop and now why is it coming in my favor, you know? And that's एग्जैक्टली, when my tilting starts. And then it becomes a whole that, okay, now let me recover it. And then you start taking really random trades, something that's not even in एग्जैक्टली, your plans. Yeah. And राइट, then let's say you take the next trade and now you're sitting in a loss. And 9 out of 10 times the next trade is a loss. It's never a winner. So you are एग्जैक्टली, sitting now at like 4,500 rupees loss. Then you get more upset that, okay, what's happening? So now you try to short the market twice, you failed. So now you switch to long. Now when you switch to long, you go with double quantity because you have to cover, right? The entire mindset shifts यस, from accepting loss to covering your loss.
and Yes. then it tilts over. And I am unfortunate or fortunate enough to experience this in Sensex. So you know और how एक बात मैं Sensex बता दूं, options are. या और एक मैं यहाँ पे छोटा सा एडिशन करता हूँ। इनिशियल जो जो लॉस होता है ना, जो भी रेट दिखता है ना, वो छोटा, वो बड़ा लगता है एक्चुअली। इनिशियल जो रहता है मतलब मान लीजिए कि जैसे आप एग्जांपल दिए 2,500 3,000 है ना, वो एक्चुअली हम लोग का चोट आता है, एक्चुअली वो चोट आता है। लेकिन इसके बाद में जब हम लोग थोड़ा एग्रेशन में आ जाता है ना, उस टाइम पे वो लॉस बढ़ता जाता है, लेकिन हम लोग को वो छोटा छोटा लगता है। क्योंकि हम हाँ वो छोटा एंड लगता है कि 6,000 हो गया, अभी 10,000 15,000 20,000 वो बढ़ता जाएगा। लेकिन हम लोग को ना वो पहला जो झटका आया था, फर्स्ट जो इंटेंस आया था ना, वो इंटेंस है, ये इंटेंस कम लगेगा, क्योंकि हम नहीं, लोग। वो एक बात वो भी हो जाता है कि आफ्टर अ पॉइंट वो नम होने लगता है, मतलब आप लॉस फील ही बस, नहीं करते हो, यू आर जस्ट एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ट्रेडिंग इन एंगर, यू नो। एंड आई हैव, मैं बोल तो कह रहा हूँ ना, मैंने ये सेंसेक्स के सेकंड हाफ जीरो डीटी एक्सपायरी पे किया है, जहाँ यू नो 200 की कल प्रीमियम 50 रुपए yesterday गिरी है विद इन लाइक अ मिनट, लिटरली अ राइट मिनट। राइट So राइट I know how that feels. So, you know, and especially these things happen. Let's say you are on a small streak, आपने दो तीन छोटे विंस किए, एंड राइट। सडनली आपने रेड देखा, तो वही यू नो सेल्फ डाउट, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन सब चालू होता है। तो पूरा एग्जैक्टली। साइकिल रहता है वो। तो फॉर मी मतलब दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जहाँ मैंने एक्सपीरियंस किया कि इफ आई इन हाइंडसाइड अगर मैं बस किल स्विच दबा देता था एट हम्म। 3,500, तो शायद मैं वो 15-16 हजार का लॉस देखता ही नहीं था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वही कोई कोई ऐसा ही बोलते हैं, इवन मैं भी मानता हूँ। मेरा भी जो सिस्टम है, जो मैं अल्गो में सिस्टम है मेरा, मेरा डिफाइन रहता है कि एसएल इतना है, प्रॉफिट इतना है बोल के। और अगर एसएल ले लेता है तो मैं क्विकली सोचता हूँ कि हाँ, अगर तो एसएल तो आ गया, अभी व्हाट नेक्स्ट। क्योंकि उस टाइम पे अगर उसी लूप में आप रह जाओगे ना, तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा ये वाला नेक्स्ट जो है। यहाँ पे मैं किया हूँ कि नेक्स्ट, पहले तो हम लोग बात कर लिए, पहले तो बात कर लिए, फियर आ जाता है तो हम लोग को लॉसेस हो जाता है, छोटा लॉस से बड़ा लॉस होता है, ये प्रोसेस में चला जाता है एक्चुअली। सेकंड क्या होता है कि जिस टाइम पे ये जो प्रोसेस आता है ना, नेक्स्ट जो स्टेप में आ जाता है ना, आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगा, लेकिन आप नहीं ले सकते, आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे आप उस टाइम पे। आपको एक्चुअल ट्रेड भी जिस टाइम पे, क्योंकि तब तक ना हम लोग टायर्ड हो चुके होते हैं, मतलब माइंड टायर्ड हो चुका होता है, या नहीं तो हम लोग का जो पेशेंस है ना, वो खत्म हो चुका था। तब तक हम लोग पूरा टोटल ड्रेन आउट हो जाए। और उस टाइम पे हम लोग, एक तो है फियर है, क्योंकि लास्ट जो मोमेंट हम देके पास करके आए हैं ना, नेक्स्ट मोमेंट अब जब उस टाइम पे वो ट्रेड को लेने के लिए दिमाग प्रोक्रेस्टिनेट करता है। उस टाइम पे अच्छा ट्रेड मिलता है आपको, एक अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, लेकिन आप ले नहीं सकते उसको, एंट्री नहीं कर सकते हो। और ये पूरा जो भी मतलब उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, ओवर एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ओवर एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। और एक परफेक्ट कंफर्मेशन के लिए वेट करते हैं हम लोग, क्योंकि पहले ऑलरेडी हो चुका है ना, हम लोग के पास ऑलरेडी लॉस हो चुका है ऑलरेडी। तो ये प्रोक्रेस्टिनेट आप करते लेते हैं, जो प्रीवियस लॉस का जो जब रिड्यूस होता है। और और एक बात यहाँ पे, ये दोनों स्लाइड के बीच में जो लिंक है ना, कि पहला ट्रेड और सेकंड ट्रेड, हम लोग बहुत टाइम के जो जिस टाइम पे आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, डे ट्रेडिंग हो जो भी है ना, आप स्टार्ट करते हो, उस टाइम पे रिकवरी बोल के कुछ वर्ड आपका दिमाग में रहता नहीं है। देर इज नो सच टर्म रिकवरी इन योर माइंड। बट वंस ट्रेडिंग में आने के बाद, एक बार लॉस देखने के बाद, नेक्स्ट आपका अटेम्प्ट क्या रहता है, रिकवरी। बट रिकवरी ऐसे क्यों हो, लाइक वाई मार्केट विल रिवॉर्ड यू एज रिकवरी? Every trade you are initiating, that is with a risk and reward, right? And for each trade the risk and reward are different. It's not equal actually, because there may be chances the script is different, there may be chances if you are an option trader, the option strike price is different, there may be a different theta is there, different delta is there, different like VIX is there. So it's not that the same thing you can recover, it's not like that. And until unless अगर आप उसी रिकवरी का माइंडसेट में रहना चाहते हो ना, तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो आप, क्योंकि आपका क्या है, आपका रिस्क अभी मुझे बताइए, एक नॉर्मल, एक आइडियल जो रिस्क आरआर रहता है, वो 1:3 बोलते हैं सबको, क्योंकि 1:3 इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अनइवन होता है। 1:2 भी ठीक है, बट 1:3 इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आपको एक भी ट्रेड सक्सेस हो गया ना, तो नेक्स्ट दो ट्रेड का जो लॉसेस है ना, उसको रिकवरी कर सकता है वो, मतलब रिकवरी इन द सेंस उसको बैलेंस कर सकता है। अगर आई एम नॉट से आई शुड नॉट से रिकवरी, इट्स नॉट रिकवरी, बट यू कैन टॉलरेट दैट द नेक्स्ट। अगर आपको एक भी ट्रेड, 3 ट्रेड से अगर आप एक भी ट्रेड सक्सेस हो गया, तो बाकी जो दो ट्रेड है ना, उसको वो टॉलरेट कर सकता है, राइट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक ही लॉस देख लिए, मतलब उसके पीछे ही हम लोग लग जाते हैं कि उसको रिकवरी हो जाए। लेकिन एक्चुअलिटी में क्या है, एक्चुअलिटी में आपको 1:3 है रेशियो।
मतलब उस टाइम पे अगर 5 रुपया आपने एसएल ले लिया है, आपको नेक्स्ट टाइम अगर 15 रुपया है, बट यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द 15 रुपीज, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द 5 रुपीज रिकवरी। सो इसलिए कभी भी एक ट्रेड के साथ दूसरे ट्रेड को लिंक मत कीजिए। वी नीड अ पॉज इन बिटवीन। और ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है आपको वो पॉज दिलाएगा। इमोशनल जो अ, अभी आगे और भी स्लाइड्स है जो कि हम लोग इमोशनल इमोशनल का जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी और इमोशन के बारे में सीखेंगे, और भी थोड़ा आगे है। बट ये जो मैं अभी जो बोल रहा हूँ कि एक ट्रेड के बाद में नेक्स्ट ट्रेड को कभी भी लिंक मत कीजिए कि मेरा प्रीवियस जो ट्रेड था उसी ट्रेड को मैं कंटिन्यू करके जाऊंगा। बहुत टाइम में ऐसा होता है कि अगर ऑप्शन बायर और सेलर्स पे ऐसे में देखा हूं, अगर आपने एक ट्रेड ले लिया मॉर्निंग में पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में, ऑप्शन ट्रेडिंग में बाकी भी होता है, आपने ट्रेड ले लिया तो मार्केट आपका अगेंस्ट में गया, और जिस टाइम पे आप जो भी ऑप्शन स्ट्राइक बाई या सेल किए थे, अब मार्केट 200 पॉइंट अबव उसका ऊपर, लेकिन आपका जो पीएनएल में वही रेड है, तो वो ऑलरेडी इन द मनी हो चुका है। अगर आप उसको टच करोगे ना, वो इट विल वर्क लाइक ए फ्यूचर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसी रेड को ग्रीन करने में लग जाते हैं हम लोग। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम लोग को शिफ्टिंग करना है, अभी मार्केट ऑलरेडी 200 पॉइंट ऊपर है, उसमें डेल्टा डिफरेंट है, उसका जो ग्रीक है वो डिफरेंट है। लेकिन नॉर्मल पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं कि उसी में उसी रेट को ग्रीन करने में लग जाते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज वो कनेक्टेड है। वो जो पहला जो ट्रेड था ना, नेक्स्ट ट्रेड उसको कनेक्टेड कनेक्शन कर दिए वो लोग। वी शुड नॉट डू दैट, दैट इज द फर्स्ट मिस्टेक वी डू। तो ये पॉज हम लोग को उस ट्रेड में चाहिए, जो भी ट्रेड नेक्स्ट ट्रेड हम लोग ले रहे हैं ना, ईच एंड एवरी ट्रेड, जो कि इसलिए मैं बोलता हूँ ट्रेडिंग रिचुअल्स बोलते हैं, जो ट्रेडिंग में एंट्री का रिचुअल्स रहता है, आपका डे रिचुअल, जैसे कि आप ट्रेडिंग करते हो, जैसे कि एक नॉर्मल एक शॉप या नहीं तो ऑफिस जाते हो, आपको रिचुअल्स रहता है, राइट। आपको ऑफिस जाना है मतलब आप क्या करना चाहते हो, एक रिचुअल्स रहता है। सिमिलरली आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक शॉप है, आपके पास एक शोरूम है, आप उसको ओपनिंग करने के लिए एक रिचुअल्स रहता है। एग्जैक्टली ट्रेडिंग के लिए भी एक रिचुअल फॉलो करना पड़ेगा। मॉर्निंग से प्रैक्टिस जो भी आप करते हो, आप वॉच करो कि मैं क्या करता हूँ डे, पूरा डे में मैं मतलब ट्रेडिंग से पहले क्या क्या करके आ रहा हूँ मैं, उसमें क्या मैं चेंजेस ला सकता हूँ, ताकि जिस टाइम पे मैं ट्रेडिंग लेता हूँ उस टाइम पे एक अच्छा बैलेंस माइंड में बैठ बैठ सकता हूँ। सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर मुझे आप पूछेंगे मेरा रिचुअल्स क्या रहता है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। मेरा रिचुअल्स ये रहता है, मॉर्निंग में जल्दी थोड़ा उठता हूँ, ये आपका ऊपर डिपेंड करता है, आप उठ सकते हो नहीं उठ सकते हो। मैं मॉर्निंग उठता हूँ, मेरा मेडिटेशंस रहता है, मेरा और कुछ जो भी थोड़ा अगर योगा में कर सकता हूँ करता हूँ, नहीं तो मैं मॉर्निंग वॉक में निकल जाता हूँ। आने के बाद 9:30 के बाद में मार्केट वॉच करता हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं एक टॉपिक भी दिया था, एक पीडीएफ दिया था कि मार्केट जो फेज वाइज में जो फेजेस में जाता है, नॉर्मली 4 फेजेस में जाता है, मैं पहला फेज को स्किप करता हूँ। हाँ, अगर मुझे लगता है कि कंटिन्यूएशन है प्रीवियस डे का क्लोजिंग का, मतलब 2:30 के बाद में 3:30 का जो क्लोजिंग रहता है वहां पे कुछ कंटिन्यूएशन है, कुछ एक्सपेक्टेशन है, तो मैं वॉच करता हूँ, अदरवाइज मैं कंप्लीटली स्किप करता हूँ मॉर्निंग सेशन। 10:30 के 10:15 के बाद में मैं जो चार्ट रहता है उसका एनालिसिस करता हूँ, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है देखता हूँ, इसके हिसाब से मैं ट्रेड को इनिशिएट करता हूँ। और ट्रेड के बाद में भी अगर ट्रेड में मुझे कितना तक रहना है क्या है, तो एसएल रहता है मेरा, कभी मैं जो भी एसएल रहता है वो चार्ट के ऊपर रहता है, नहीं तो मेरा जो एक्चुअल सिस्टम में एसएल था उसके ऊपर रहता है। तो एसएल जाने के बाद थोड़ा देखना कि नेक्स्ट क्या मोमेंटम आ सकता है, गलती क्या क्या हो गया, ये पूरा देखने के बाद ना, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो कोई भी टाइम पे आप एक ट्रेड में एंट्री कर रहे हो, एक तो है अगर आप डे ट्रेडर हो, आप एक एक रिचुअल फॉलो करो कि मुझे ट्रेडिंग से पहले मुझे ये काम करना है। ऐसा नहीं कि रात को पूरा नींद नहीं हुआ है मैं ट्रेडिंग में आके बैठ गया। ऐसा नहीं कि लास्ट यस्टरडे कुछ घर में कुछ हड़बड़ी है, यू आर ट्रैवलिंग, यू आर मे बी विथ जस्ट ए मोबाइल ओनली, यू आर टेकिंग लाइक मल्टीपल चार्ट्स मल्टीपल थिंग्स एंड ऑल इन द स्क्रीन, टेकिंग द चार्ट टेकिंग द ट्रेड, डेफिनेटली भी प्रॉब्लम एक्चुअली। वो सेटअप वो माइंडसेट पूरा होना चाहिए, तब जाके आप पूरा कूल होकर आप ट्रेड ट्रेड में एंट्री करोगे, तभी आप उस ट्रेड में पेशेंसली आप रह सकते हो एक्चुअली। तो ये प्रोसेस है एक्चुअली। और अगर आप बोलोगे कि इतना सारा कौन करेगा, सो मैं सिंपल सा एक बात बोलता हूँ, आप कोई भी एक प्रोफेशनल में ले लीजिए कि जैसे कि एक डॉक्टर एक ऑपरेशन ओटी में जाने से पहले कितना सारा काम वो करके जाता है, वो खुद का हाइजीनिक करता है, अपना जो ड्रेस पहनता है, जो भी ड्रेस पहनना है, जो भी क्लीनिंगनेस जो भी रहता है, माइंडसेट वो रहता है कि मुझे ये काम करना है, उसको पूरा चार्ट पेपर करता है, फिर जाके वो ओटी में जाता है। ऐसा नहीं कि वो जाने के बाद से इमीडिएटली वो ऑपरेशन शुरू कर देता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक लॉयर आप देख लीजिए, एक टीचर देख लीजिए, कोई भी प्रोफेशन आप देख लीजिए, अपना काम करने से पहले वो अपने आप को खुद को प्रिपेयर करता है वो। तो वो प्रिपेयरनेस आपके पास रहना चाहिए, ठीक है।
तो ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, बट अगेन इट डेफिनेटली हेल्प यू, जो भी हम लोग अभी बात कर रहे हैं, कि जो भी रिचुअल्स के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि जो इनिशियल जो थॉट है था ना, आप प्रोग्राम हो जाते हो इसके हिसाब से, आप प्रोग्राम पूरा डे में पूरा प्रोग्राम हो जाते हो। अगर मैं सिंपल सा एक बात पूछूं, आप अभी जो जिस रूम में बैठे हो, सिंपल सा एक बात पूछता हूं मैं, आप जिस रूम में जहां पे बैठे हो, आप चारों तरफ देखो, देख के थोड़ा मुझे बताओ कि रेड कलर कहाँ पे है। देख लिया आपने रेड कलर? कहीं पे भी जितना भी रेड कलर आपको दिख रहा है देख लो सारा। अभी मुझे एक बात बताओ, जिस टाइम पे मैं बोला कि आप रेड कलर कहाँ पे है, आपको येलो दिखा क्या? आपको आपको ब्लैक दिखे क्या? आपको ब्लू दिखे क्या? नहीं दिखा? नहीं। क्यों नहीं दिखा आपको? क्योंकि आप जो देखना चाहते हो वही आपको दिखेगा। द वन यू फोकस दैट ग्रो, दैट्स व्हाट वी से। आप जिसको फोकस करेंगे ना वही ग्रो करेगा। कभी कभी मैं इसलिए बोलता हूँ, आप एसएल का कोई फोकस मत करो, एसएल को जस्ट इग्नोर करो। इग्नोर इन द सेंस, ऐसा नहीं कि एसएल मत लो। एसएल एसएल कहाँ पे है, कितना है, उसको कभी भी एडजस्टमेंट, कभी भी उसको फोकस मत करो। एसएल लगा दिए, छोड़ दिए। क्योंकि अगर आप उसको फोकस करोगे ना, उसी में आपका अटेंशन रहेगा, आपका टारगेट जो है ना, टारगेट तक जाएगा मार्केट, लेकिन आपको एसएल, बिकॉज यू आर इन द एसएल जोन, यू आर मोर पैनिक, यू आर इंटेंशनली, यू आर लाइक इन ए डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन, यू विल ट्राई एडजस्टमेंट और अदर थिंग्स। थोड़ा इधर करना उधर करना, वो शुरू हो जाएगा, फिर इसके बाद में पूरा गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि मैं, अगर आप चार्ट, मतलब जो चार्ट, अगर चार्ट रीडिंग आता है आपका को, चार्ट रीडिंग आता है ना, बहुत सारे टाइम पे मैं देख रहा हूँ लोगों को डेजावू एक्सपीरियंस होता है। डेजावू मतलब क्या है ना, जो आपको आपके लाइफ में, यानी तो आपको वो जो जो इवेंट है, वो इवेंट हुआ नहीं, लेकिन वो आपको दिखेगा कि जैसे हो चुका है एक्चुअली। अगर आप चार्ट रीडिंग आता है उस टाइम पे वो होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप ट्रेड ले लिया मतलब इमीडिएटली वो हो जाएगा, ऐसा नहीं, कभी ऐसा कभी भी नहीं हो सकता एक्चुअली। क्योंकि हर टाइम फ्रेम को मार्केट रिएक्ट करता है, जो आपका प्राइस है ना, हर टाइम फ्रेम को रिएक्ट करता है। हर जितना सारे आपका जो भी मतलब डायनामिक, या जो भी एग्जिस्टिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है, हर टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक रहता है। हर टाइम फ्रेम में आपका जो फेयर वैल्यू गैप रहता है, सारे चीज को मार्केट मतलब जो इसको मतलब ये करके चलता है, राइट? उसको लेके वो चलता है, साथ साथ चलता है। तो आप जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड ले रहे हो, उस उस टाइम फ्रेम में आपको रुकना पड़ेगा। बाकी टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है आपको कोई देखने का जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ट्रेड लेने के बाद दो ही आउटकम आ सकता है। एक तो आपका एसएल हो सकता है, एक को टारगेट आ सकता है। ये आपको मान के चलना पड़ेगा, ये आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। कभी कभी ये प्रॉब्लम होगा, जैसे अनिल अनिल सर ने भी बताया कि नहीं अभी मेरा एसएल, तो हाँ गिरीश, या नहीं, गिरीश। जैसे अभी आप टाइम फ्रेम का बोले, जैसे अभी एग्जांपल बोला, जैसे अभी मैं समझे 30 मिनट का चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का देखता हूँ, एक बात है। फिर हम्म। उसके बाद मैं एंट्री लूंगा 5 मिनट्स के इसमें, तो वो चलेगा, मतलब ऐसा वो नहीं होता है क्या कैसा? जैसे वो पूछ रहा था जरा सा, जैसे हाँ आप हाँ, कुछ श्योर बोले ना श्योर श्योर कि श्योर, एक। वो सही है, वो सही हाँ है। आप जैसे बोले कि 30 मिनट आपका हायर टाइम फ्रेम रहा, आपने आपने देखा, और 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप हाँ एंट्री लिए, एक्चुअली कंफर्मेशन के साथ एंट्री लिए। हाँ लेकिन मैं क्या बोल हाँ रहा हूँ कि स्टिल स्टिल, अगर आपका हाँ। एक्सपेक्टेशन है कि वो सक्सेस हो जाएगा, हो सकता है हम्म, सक्सेस, लेकिन यहाँ पे दो आउटकम आएगा, वो प्रोबेबिलिटी हमेशा आपके साथ रहेगा। पहला प्रोबेबिलिटी एसएल, सेकंड प्रोबेबिलिटी आपका टारगेट। क्यों? हाँ जैसे आपने अभी बोले कि 30 मिनट टाइम फ्रेम वर्सेस 5 मिनट टाइम फ्रेम, मतलब 30 मिनट टाइम फ्रेम आप उसको एनालिसिस किए, जो भी सेटअप बन रहा है, और 5 मिनट टाइम फ्रेम आपको एंट्री किए, और आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिए। मुझे एक बात बताइए, अभी आप 30 मिनट लिए, लेकिन हो सकता है कि मैं 4 आवर में 30 मिनट ले रहा हूँ, मतलब मैं हायर टाइम फ्रेम देख हम्म रहा हूँ और हायर टाइम फ्रेम देख रहा हूँ। मैं हम्म 4 आवर हम्म में देखा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, और 30 मिनट के हिसाब से मैं इसको ऑपरेट हम्म एग्जीक्यूट किया। अभी आप क्या हम्म बोले कि आप 30 मिनट के हिसाब से आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगा, और 5 मिनट आपने हम्म एग्जीक्यूट डाउन ट्रेड ले लिए। हम्म तो कोई भी टाइम फ्रेम आपको, मतलब प्रॉब्लम यह होता है कि आउटकम हमेशा दो ही आएगा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब कहाँ जहाँ पे भी आप एंट्री कर रहे हैं ना। मुझे एक बात बताइए, क्यों? और एक भी मतलब साइंस के हिसाब से और एक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे बोलते हैं एंट्रोपी। साइंस, जो लॉ ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी में क्या होता है कि जो नॉर्मल जो होता है, कि जो बिखरना, मतलब जो स्प्रेड होना, एंट्रोपी में, एंट्रोपी स्टेट में जाना, ये डिफॉल्ट है साइंस में एक्चुअली।
मतलब जैसे मैं एक बोल दूं, आप पानी को अगर खुला छोड़ोगे तो पानी क्या करेगा, नीचे जाएगा, बहता जाएगा, राइट। एक अगरबत्ती लगाओगे तो अगरबत्ती वो स्प्रेड हो जाएगा, राइट, वो जो स्मेल स्प्रेड हो जाएगा, राइट। स्प्रेड, बिखरना, ये मतलब लॉ का, ये नेचर का लॉ है एक्चुअली। और ट्रेडिंग में नेचर का लॉ क्या पता है आपको, लॉस। क्योंकि मास वही है एक्चुअली। अगर आप देखोगे, सब कोई बोलते हैं कि 90% लॉसेस, मतलब जो मास से क्या है एक्चुअली, लॉस में है एक्चुअली, राइट। तो बिखरना मतलब, इसका मतलब है लॉस करना, ये आप कभी भी ट्रेड लेते हो कि आज मैं लॉस करता हूं, ऐसा कभी ट्रेड लिया हो क्या? आपको हमेशा जब जब ट्रेड लेते हैं उस टाइम पे क्या रहता है दिमाग में, आज मैं प्रॉफिट करता हूं, क्योंकि लॉस इज डिफॉल्ट। उसका पोटेंशियल ज्यादा रहता है एक्चुअली, देखा जाए तो, मतलब और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैं बोला कि ये एंट्रोप लॉ ऑफ एंट्रोपी में है। अगर आप उसी को लेके आप चलोगे ना, आप अगर एक अच्छा खासा कपड़ा, मतलब जैसे कि ड्रेस, कोई भी कपड़ा, आप नहीं पहन के उसको 2-3 दिन, मतलब 2-3 महीने ऐसे छोड़ दो, पूरा क्लीन करके, ड्राई क्लीन करके, आयरन करके इसको ऐसे ही छोड़ दो, 3 महीने के बाद क्या होगा, वो कपड़ा खराब हो जाएगा ना। क्योंकि Yeah. वो लॉ ऑफ एंट्रोपी है एक्चुअली, वो अपने आप, कोई भी एक साफ सुथरा घर आप ऐसे छोड़ दोगे तो खराब, वो उसको साफ करना पड़ता है। जैसे कि घर में कपड़ा बिखर जाता है, उसको क्लीनिंग करना पड़ता है, उसको सजाना पड़ता है एक्चुअली, मतलब जो अरेंजमेंट है, जो स्किलफुल काम रहता है ना, जिसको करना पड़ता है, वो उसको हम लोग को इंटेंशनली करना पड़ता है। सेम प्रॉफिट भी इंटेंशनली करना पड़ेगा, जो कि हम लोग का दिमाग में वो रखना पड़ेगा। तो इसलिए जो लॉस पार्ट है वो ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटेड इन द सेंस उसको हम फोकस नहीं करेंगे। अगर घर में कुछ बिखर जा रहा है उसको फोकस नहीं करेगा। अगर आपको पानी को रोकना है, तो पानी जो स्प्रे हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। आपको ब्रिज बनाना है आपको, यानी तो और कुछ करना है, वो आपको उसको, आपका इंटेंशन वहां पर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी क्यों क्यों स्प्रेड हो रहा है, ऐसा नहीं कि क्यों लॉसेस हो रहा है। आपको लॉस कब क्यों, जैसे मैं अभी छोटा सा एग्जांपल दिया था ना, कि आपका रूम में जो है रेड कलर, मैं एग्जांपल अभी और एक एग्जांपल दे रहा हूं। अभी आप मुझे एक बात बताइए कि आपका रूम में, सेम सेम एग्जांपल दे रहा हूं, आपका रूम में आप देखो अभी, अब ब्लैक नहीं देखना है, बाकी जो देखना है देखो, कलर्स दिख रहे हैं, सब कलर। अभी ब्लैक दिखा है आपको, गिरीश, अनिल? Yeah. यस सर। ब्लैक दिख रहे दिखा थे। है अभी? ब्लैक और सभी दिख Yeah. रहे थे मिक्स। मैं क्या बोला, ब्लैक Mix नहीं village. दिखना है, राइट, लेकिन आपको ब्लैक ज्यादा दिखेगा। ओके। क्योंकि ये रिवर्स साइकोलॉजी है, इसको रिवर्स साइकोलॉजी बोला जाता है। जो हम लोग बोलते हैं कि नहीं करना है ना, वही ज्यादा फोकस हो जाता है Oh, एक्चुअली। yeah. Okay. ठीक है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लॉस इज ए प्रॉब्लम हम लोग को एक ही चीज पे है भाई। एक ही प्रॉब्लम है कि लॉस। अगर उसी के बारे में हम लोग सीख लेंगे ना, तो हम लोग को और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट अपने आप होता जाएगा एक्चुअली। हम लोग फोकस ओके। लॉस पे करते हैं एक्चुअली, क्योंकि वंस यू एक्सेप्टेड दैट्स ए पार्ट ऑफ द गेम, जो भी हम लोग गेम है ना उसी का पार्ट है ना, वो अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो हम लोग उसी में, हम उसको, क्योंकि लॉस एक क्या है कि जो एसएल होता है ना, एसएल एंड लॉस में डिफरेंट रहता है एक्चुअली। एसएल मतलब स्टॉप लॉस, मतलब जो बड़ा लॉस रहने वाला ना, इसको आप स्टॉप कर रहे हो। जो भी अनलिमिटेड लॉस, जो भी कैपिटल को डेंट देने वाला है ना, उसको आप स्टॉप कर रहे हो। कभी कोई बोलते हैं, अगर आप मतलब महाभारत में आप सुने होंगे कि युधिष्ठिर ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने स्टॉप लॉस नहीं लिए, कहाँ पे, जिस टाइम पे वो पासा खेल रहे थे, जो वो खेल रहे थे, उस टाइम पे वो स्टॉप लॉस नहीं लिए, राइट, वो बंद नहीं किए, क्योंकि उनका मन में ईगो आ गया था। जो कि बलराम ने बाद में उसको बताया था, कृष्ण जी को बताया था कि, आई मीन आई शुड नॉट टॉक डिस्कस ऑल दिस टॉपिक हियर, बट वहां पे वो स्टॉप Hmm. लॉस ले सकते थे एक्चुअली। सेम ये हम लोग का लाइफ में स्टेप लॉस वही है एक्चुअली। स्टॉप लॉस एक चीज है जहां पे बड़ा लॉस को हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। जो अनलिमिटेड लॉस है ना, मार्केटेबल लॉस, जैसे कि वो डायलॉग है ना कि स्टॉक मार्केट गहरा कुआं है, वही। आप जितना डालोगे उतना अंदर जाएगा, जितना निकालोगे उतना भी बाहर आएगा। ये सच में गहरा कुआं है एक्चुअली। उसका वो अनलिमिटेड है एक्चुअली, इसमें कुछ लिमिट नहीं है। अब जितना डालोगे उतना जाएगा, जितना आप निकाल सकते हो उतना भी आ सकता है। तो आप किसके ऊपर फोकस करना चाहते हो, आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये टॉपिक बहुत लंबा हो गया, आई विल गो टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ये जो अभी हम लोग बात करें ना, कि ये जो इवेंट हो रहा है, सारा इवेंट्स हो रहा है ना, इसमें बेसिक क्या होता है एक्चुअली।
बेसिक ये है जो यहाँ पे लिखा गया है कि 80 मिली सेकेंड्स लगता है, ओनली 80 मिली सेकेंड्स लगता है कि हम लोग को रिएक्ट करने में, कोई भी इवेंट में, कोई भी इमोशनल इवेंट में। ओनली 80 सेकेंड, 80 मिली सेकेंड्स में हम लोग को बॉडी का जो रिएक्शन शुरू हो जाता है। और बॉडी का रिएक्शन मतलब क्या होता है कि जो हम लोग वट एवर वी नो, लाइक हम लोग जो भी पहले से जानते हैं उसी पर्टिकुलर इवेंट, उसका बराबर का जो इवेंट होता है, उस टाइम पे बॉडी कैसा रिएक्ट करना, जो भी हम लोग जानते हैं उसी हिसाब से बॉडी रिएक्ट करता है। अगर आपने पहले ट्रेडिंग नहीं किया हो, तो जिस टाइम पे पहला बार प्रॉफिट होता है, कभी भी नहीं किया प्रॉफिट ट्रेडिंग, फर्स्ट टाइम आप डूइंग ट्रेडिंग, तो उस टाइम पे जो प्रॉफिट के टाइम पे आपका जो बॉडी रिएक्शन किया है, वो ऐसा है कि जैसे कि कोई आपको फ्री में कुछ मनी दे दिया, आप रास्ते में जा रहे थे, कोई आपको कुछ पैसा दे दिया। वो जो मोमेंट है ना, सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंट आपको लगेगा एक्चुअली, क्योंकि हम लोग पास कोई रेफरेंस नहीं है। इससे पहले हम लोग ट्रेडिंग जानते नहीं है कि मार्केट में ऐसा पैसा हो जाता है। यानी तो अगर आपने कुछ बिजनेस किया हो पहले, तो बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ था उसी इमोशन वहां पे आ जाता है। तो उस टाइम पे उसी को लेके पहला जो रेफरेंस था ना, इधर आपको कोई किसी ने ऐसा ही फ्री का पैसा दे दिया, उस टाइप का जो इमोशन, या नहीं तो जो आपने कुछ पहले से कुछ कुछ खरीद के कुछ बेचे हो, फिजिकल चीज कुछ किया था, उस टाइम पे जो प्रॉफिट हुआ था, सेम सिमिलर काइंड ऑफ इवेंट आपका लाइफ में आ जाएगा, वो इमोशन आ जाएगा। और इट विल टेक ओनली 80 मिली सेकेंड्स उसको आने में। और सेकंड, अगर वो कुछ थोड़ा डेंजरियस मोमेंट है, थोड़ा कुछ मतलब एडवर्स कंडीशन है, उस टाइम पे ना 6 सेकेंड्स में आपका अमिगडाला हाईजैक हो जाता है। अमिगडाला जो कि लॉजिकल थिंकिंग को जो प्रोसेस करता है, पीएफसी में जो रहता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जो हम लोग रहता है, वो उसको हाईजैक हो जाता है एक्चुअली। वो हाईजैक होने के बाद हम लोग का ओनली 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद ना हम लोग पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। बॉडी में जो ब्लड रश होना, यानी तो जो भी आपका एंजाइटी बढ़ जाना, यानी तो जो भी आपका बाकी जो इमोशनल स्टेट्स हो, हाइपर इमोशन, वो सब आ जाता है 6 सेकंड में। ओनली 6 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 आपको जस्ट काउंट करना है, उसके बीच में आ जाएगा वो। और इसके बाद में लॉजिकल माइंड कट, एनालिटिकल माइंड कट, कुछ भी नहीं रहेगा। आप कंप्लीटली बॉडी, कंप्लीटली जो आपका जो ये अमिगडाला हाईजैक होने के बाद आपका बॉडी कंप्लीटली कंट्रोल ले लेगा, आपको ब्रेन का जो उसको कट ऑफ कर देगा। कोई भी मतलब आपका थॉट्स कुछ नहीं आएगा एक्चुअली। आपका जो थिंकिंग पावर कंप्लीटली कट ऑफ हो जाएगा, और जो भी एक्शंस होगा वो ऑटोमेटेड हो जाएगा 6 सेकंड के बाद। एंगर सिचुएशन में देखिए, आप जिस टाइम पे एंग्री हो जाता है ना, उस टाइम पे क्या होता है, जिस टाइम पे पैनिक हो जाता है, फियर आ जाता है, उस टाइम पे क्या हो जाता है, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। और ट्रेडिंग में ये तो हमेशा आता है, एवरी सेकेंड में आपका इमोशन चेंज होता रहता है, एवरी सेकेंड में। क्योंकि कैंडल का टिक के साइज के हिसाब से हम लोग का इमोशन चेंज होता जाएगा ना। अगर मेरा डायरेक्शन में जा रहा है तो आ गया प्रॉफिट, आ गया। अगर मेरा डायरेक्शन में गया तो प्रॉफिट, लॉस गया, लॉस गया। अभी काइंड ऑफ दैट एक्चुअली। अगर साइडवेज में हो गए तो अरे साइडवेज मार्केट गया, ठीक है ना। तो ये पूरा इमोशनल का जो टिक टिक होता है, मतलब इस जो टिकर का टिक के साथ हम लोग का जो इमोशनल का टिक, वो ऊपर नीचे होता रहता है एक्चुअली। और इसलिए ये जो इमोशनल इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है ना, वो उसी 6 सेकंड के बीच में आपको वो स्टेबलाइज करता है। आपको वो एमिगडाला हाईजैक होने को नहीं देता है, अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस हो। और ये इमोशनल इंटेलिजेंस किसके साथ रिलेटेड है, अगर आपको इफ यू नो दैट वन, आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन बोलते हैं जो इसको, ऐसा ही ईक्यू रहता है, इमोशनल क्वेश्चंस रहता है। आईक्यू का एक थ्रेशोल्ड है, अगर आपको पता है कि टॉप मोस्ट जो भी आईक्यू जिसका हाईएस्ट था, आइंस्टाइन के भी था, स्टीफन हॉकिंस का भी था, मतलब जो उनका आईक्यू बहुत हाई है एक्चुअली। लेकिन अगर इमोशनल क्वेश्चंस के बारे में बोलूं, जो कि हाईली इंटेलेक्चुअल, जो भी उनको जो इंसाइट्सफुल मिला है एक्चुअली, इमोशनल जो भी इंसाइटफुल मिला उनको, और उनको जो एनलाइटमेंट मिला है, जैसे बुद्ध को मान लीजिए आप, उनका कितना फॉलोअर्स है, क्योंकि वो इमोशनल क्वेश्चंस में उसका सबसे हाईएस्ट था एक्चुअली, ईक्यू उनका सबसे हाईएस्ट। और स्पिरिचुअली वो, उनका जो एनलाइटमेंट मिला था वो स्पिरिचुअली मिला था उनको, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर मिला था उनको। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि कन्फ्यूशियस है, वो तो साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल नहीं, वो उनका तो रहता है फिलोसॉफिकल, वो जो रहता है कन्फ्यूशियस है, उनका बहुत सारे ये है, मतलब उस टाइम पे उनका बहुत सारे फॉलोअर्स थे एक्चुअली। ऐसे ही बहुत सारे हैं जो कि, लेकिन मैं बुद्ध का एग्जांपल दिया। तो वो उनका जो है ना, आईक्यू उनका कम है, उनका आईक्यू के हिसाब से कोई याद नहीं रखता, लेकिन उनका ईक्यू है ना सबसे हाईएस्ट है एक्चुअली। तो वो ईक्यू हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये जो 6 मिली सेकेंड, आप 6 सेकेंड एंड 80 मिली सेकेंड देख रहे हैं, इसको कंट्रोल में करने के लिए।
क्योंकि उस टाइम पे हम लोग का दिमाग काम में नहीं होता है। और सेकंड क्या है कि हम लोग इसको ना इतना बार प्रैक्टिस कर चुके होते, इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली हो, बेसिकली अनइंटेंशनली, क्योंकि मॉर्निंग टाइम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मॉर्निंग ट्रेड जाने से पहले क्या बोलते हैं हम लोग कि कल का जो लॉस हो गया, आज हम लोग थोड़ा माइंडफुलनेस होकर ट्रेड करेंगे। लेकिन होता है क्या ऐसा? ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि बार बार हम लोग इतना बार उसको प्रैक्टिस कर चुके हैं ना, सेम कंडीशन सेम सिचुएशन, हम लोग वहां से बाहर नहीं आ पाते हैं एक्चुअली। और बॉडी ऑटोमेटिकली, बॉडी को ऐसा नहीं, बॉडी जो माइंड है ना, जो आपका कॉन्शियस माइंड है ना, वो उसको पता है कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को कुछ नहीं पता है, उसको पैटर्न पता है। जो पहले बार किया था उसी से वो रेफरेंस लेगा, वही काम वो रिपीट करेगा एक्चुअली। और आपको बॉडी को, माइंड को उसी के हिसाब से लेके जाएगा वो। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है, जो कि ये इमोशनल क्वेश्चन या इमोशनल इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंडिंग करने में और उसको आगे लेके जाने में। ठीक है। सो और एक बात यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजिकली अगर आप ट्रेडिंग में देखेंगे, बहुत सारा एडवांसमेंट हुआ है। मतलब कैंडलस्टिक से लेकर आज का डेट में हम लोग के पास सब कुछ है, राइट। ट्रेडिंग व्यू जैसे इतना इम्पोर्टेंट चार्ट है, एक्चुअली चार्ट टर्मिनल है, ट्रेडिंग टर्मिनल है हम लोग के पास, HFT है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग का है, AI है हम लोग के पास। ठीक है ना। बट कुछ साल पहले जब आप ट्रेड पंच करते हो ना, 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद आपके पास आएगा, लेटर आएगा कि आपका रिलायंस में 2 स्टॉक परचेज हो गया। अनिल जी, गिरीश जी, Hmm. Yeah. राइट। लेकिन अभी इतना सारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, लेकिन व्हाट अबाउट आवर एडवांसमेंट, हमारा खुद का जो एडवांसमेंट के बारे में कहाँ है? क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि खुद का एडवांसमेंट इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कोई भी अदर प्रोफेशन ले लीजिए, यहाँ पे दो चीज मैं रखना चाहता हूँ। एक एक चीज ये है, कोई भी आप अदर प्रोफेशन ले लीजिए। पहला प्रोफेशन क्या है ना, जैसे कि मैं मान लीजिए डॉक्टर, तो डॉक्टर, एक डॉक्टर बनने में कितना दिन लगता है उसको? 5 साल मिनिमम। और इससे पहले भी प्रिपरेशन रहता है, 1 2 साल रहता है। एक लॉयर्स ले लीजिए, एक टीचर ले लीजिए, एक जो आप इंजीनियरिंग जो भी आप प्रोफेशनल करते हो ले लीजिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लीजिए, एक RA ले लीजिए, रिसर्च एनालिस्ट ले लीजिए, कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए, 4 to 5 ईयर्स रहता है उसमें प्रोफेशनल में आने के लिए, जस्ट क्वालिफिकेशन लेने के लिए। बट यहाँ पे क्या है, ट्रेडिंग में क्या है? फ्रीडम है, राइट। आप अकाउंट ओपन कर दिए, आप ट्रेडर बन गए। वेयर इज दैट एजुकेशन? वो ट्रेनिंग कहाँ है एक्चुअली? मार्केट के बारे में नॉलेज कहाँ है एक्चुअली? वो नहीं है ना हम लोग के पास। प्रॉब्लम तो वही होता है एक्चुअली। और हम लोग लड़ने कहाँ पे जाते हैं, किसके साथ हम फाइटिंग करने जा रहे हैं? जब भी मार्केट में एंट्री करते हैं ना, किसके साथ जान करने जाते हैं हम? जो भी टेक सेवी है, इतना बड़ा बड़ा कंपनी है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, AI है, मतलब बहुत कुछ है उनके पास एनालिस्ट है, उनके पास इतना बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके साथ हम लोग जा रहे हैं फाइटिंग करने के लिए। तो विदाउट दिस नॉलेज, ये सब सारे चीजों को हम लोग को मालूम नहीं है, बट हाउ वी कैन सस्टेन इन द मार्केट, कि एक्चुअली में बैकग्राउंड में क्या हो रहा है हम लोग कैसे पता चलेगा? वी कैनॉट नो दैट, राइट। सो इसलिए हम लोग को ये जो जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में अगर मैं बताऊं, पहला स्टेप रहता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी में ना, कि आपका खुद का जो साइकोलॉजी है उसका ऊपर मास्टरी करना। सेकंड क्या है ना, मार्केट का साइकोलॉजी के ऊपर मास्टरी करना। ये खुद का साइकोलॉजी के ऊपर मास्टरी करने से कुछ नहीं होगा। हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बोल के हो जाएगा। लेकिन मार्केट का साइकोलॉजी को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जो कि मास साइकोलॉजी, क्योंकि मार्केट जो चलता है ना, मास साइकोलॉजी के ऊपर चलता है। पर्टिकुलर किसी का साइकोलॉजी के ऊपर नहीं चलता है, मास साइकोलॉजी। जैसे मैं बोला कि अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि टाइम फ्रेम का एग्जांपल दे रहा था। सबके डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम, सबके डिफरेंट डिफरेंट एरिया में ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है एक्चुअली। ठीक है। और सेकंड, और एक बात बात मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे कि अदर प्रोफेशन में, क्योंकि मैं अदर प्रोफेशन के बारे में बोल रहा हूँ, तो और एक बात बोलना चाहता हूँ। जैसे कि टीचर, एक टीचर के लिए क्लाइंट कौन है? हु इज द क्लाइंट फॉर द टीचर? ममता कोई जॉन के, हेलो ममता जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, गिरीश, अनिल, एक टीचर के लिए क्लाइंट कौन है? स्टूडेंट्स को है। सॉरी, स्टूडेंट ये साला स्टूडेंट। हाथ से दब गया ना मेरा। करेक्ट, हाँ। एक डॉक्टर के लिए कौन है क्लाइंट उसका? मरीज, डॉक्टर राइट, के लिए तो पेशेंट, पेशेंट। राइट। हाँ, लॉयर्स के लिए कौन है? जो भी अफेक्टेड पर्सन जो भी है, वो है आपका लॉयर्स के लिए क्लाइंट है। एक ट्रेडर के लिए क्लाइंट कौन है? ट्रेडर के लिए सर आप ही बताना। हाँ जी।
अनिल जी, गिरीश जी, ट्रेडर के लिए क्लाइंट कौन है? ट्रेडर्स के लिए सर कौन होगा सर, आप ही बोलना। एक ट्रेडर के लिए आप बताइए, जिस टाइम पे आप टर्मिनल के सामने बैठते हो ना, जो कंप्यूटर के सामने बैठते हो, तो अंदर कोई बैठा है, राइट? वो आप खुद बैठे हो उसका अंदर, और वही हाँ, आपका क्लाइंट है एक्चुअली। इसलिए ट्रेडिंग सबसे ज्यादा पेनफुल होता है, मतलब इसके इसलिए ज्यादा ट्रिकी होता है, क्या हुआ था? क्योंकि अभी डिस्प्ले में क्या होगा? जिस टाइम पे आप ट्रेड ले रहे हो ना, गिरीश, आई एम म्यूटिंग यू एक्चुअली। सो जिस टाइम पर ट्रेडिंग लेते हो, सामने जो कंप्यूटर के सामने अंदर जो है ना, वो भी आप ही हो, जो कि एनालिसिस कर रहे हो, और आपका नेगेशन में, रिवर्स साइकोलॉजी में वो काम कर रहा है, नेगेशन में जा रहा है, मतलब आप बोल रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन चार्ट बोल रहा है, चार्ट का जो भी एनालिसिस कर रहा है, जो आपका जो डुअल, मतलब आपका अंदर और एक कोई है जो कि वो बोल रहा है कि नहीं, मार्केट नीचे जाएगा। और वो कौन है? वो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, आपका जो भी प्रीवियसली जो भी इवेंट हुआ है ना, उसके साथ में आपके साथ जो भी हुआ है, वही है जो आपको गाइड कर रहा है, या नहीं तो आपको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, या नहीं तो आपको डाउट में दे रहा है। तो वही है एक्चुअली, और कोई नहीं है। सो इसलिए आपको, जो आप ट्रेडिंग लेने के टाइम पे, जो भी आप कर रहे हो ट्रेडिंग लेने के टाइम पे, जो भी आप इन द सेंस लाइक ट्रेडिंग लेने के बाद या ट्रेडिंग लेने के टाइम पे, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो ना, उस एक्टिविटी को वॉच करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो ट्रेडिंग के बाद में। आप ट्रेडिंग, एक बार ट्रेड में आने से पहले या ट्रेडिंग के एंट्री करने के बाद, व्हाट आर यू डूइंग एग्जैक्टली उस ट्रेड के साथ, उस थॉट के साथ, उस इमोशन के साथ, वो आप क्या कर रहे हैं ना, उसको आप नोट बनाना पड़ेगा। वो जो इमोशंस होता है ना, उसको लेबल करना पड़ेगा। सो एक एक छोटा सा साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसे बोलते हैं कि नेम इट टू टेम इट, मतलब उसका इंटेंस को, जो भी आपका इमोशंस आ रहा है ना, उसका अगर नेम दे दोगे आप, आपका अगर वोकाबुलरी उतना ही स्ट्रांग है साइकोलॉजी को लेके, तो आप उसको नेम दे दोगे कि यहाँ पे गिल्ट हो रहा है, या मेरे को फोमो आ रहा है, मेरे को यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे फियर आ रहा है। उस टाइम पे अगर आप उसको नेम दे दोगे, लेबलिंग कर दोगे ना, आप अपने आप को उस टाइम पे ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगा, उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा। तो आपका सामने जो है ना, वो फियर आपका सामने, मतलब यहाँ पे और कोई नहीं है। जिस टाइम पे आप ट्रेडिंग करते हैं ना, उस टाइम पे आपका सामने सिर्फ कंप्यूटर रहता है, बट साइड में आपका जो इमोशन है, वो आपका साथ में बैठा है एक्चुअली। आपका जो इमोशंस, और नहीं तो आप इसको बोल सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं आप, वो सबकॉन्शियस माइंड आपका साथ बैठा है। वो आपको डाउट कर रहा है, वो आपको सब कुछ गाइड करता जा रहा है, यहाँ पे ये कर, यहाँ के वो कर, लास्ट टाइम ऐसा हुआ था। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होता है ट्रेडिंग, सब जितने सारे ट्रेडर है ना, सबके साथ वही होता है कि उसका जो क्लाइंट है वो खुद है, वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग रहता है एक्चुअली। ठीक है। सो यहाँ पे मैं पहले एक बात बोला था, नेक्स्ट स्लाइड जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, कि रेगुलेटेड इमोशन को कंट्रोल करना पड़ता है या रेगुलेट करना पड़ता है। क्या आपका थॉट है एक्चुअली, वेदर यू वांट टू कंट्रोल योर इमोशन और यू वांट टू रेगुलेट योर इमोशन? क्रिश, अनिल, ममता जी, क्या क्या थॉट है आपका कंट्रोल इसका? योर इमोशन। जी, कंट्रोल करना है। कंट्रोल कंट्रोल। कंट्रोल। कंट्रोल करना है, राइट। आप इमोशन को कंट्रोल करना बोल रहे हो, मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, कि जैसे आप ये बोल रहे हो ना, जैसे कि आप हार्ट बीट को कंट्रोल करना चाहते हो, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हो, इमोशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी यानी तो इमोशन के बारे में जो भी हम, एक एक छोटा सा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। आप इसको डायरेक्ट ये मत करो कि मैं ऑफेंड कर रहा हूँ कि कंट्रोल आप गलत बोले, बल्कि ऐसा नहीं है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि इमोशन को कंट्रोल करना नहीं होगा, मतलब नहीं कर सकते हो आप एक्चुअली। इमोशन को रेगुलेट कर सकते हो आप विथ एजुकेशन। आप एक, जैसे कि मैं बोला ना कि 80 मिली सेकेंड से 6 सेकेंड के अंदर आपका अमिगडाला हाईजैक हो जाता है ना, तो आप कंट्रोल कैसे करोगे? आज तक हम लोग इमोशन कंट्रोल कर पाए क्या हम लोग? कंट्रोल मतलब नहीं। दबाना, सप्रेस करना। बट अगर सप्रेस करोगे ना कभी तो उसको फटेगा ना। जैसे पानी, पानी जैसे वाटर फ्लो होता है, राइट? अगर आप इसको बांध बांध बंद कर रखोगे, तो कभी ना कभी वो बांध टूटेगा ना, उसको आपको निकलना पड़ेगा, पानी निकलना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं बांध, आप उसको ये नहीं कर सकते हो आप। लेकिन लेकिन आप उसको रेगुलेट कर सकते हो, चैनलाइज कर सकते हो। उसका जो एनर्जी है ना, उसको पोटेंशियल है, उसको यूज कर सकते हो आप। जब इमोशन होता है, इमोशन कभी भी गलत नहीं है। अगर आपका अंदर फियर आ रहा है, मतलब
वो फियर आपको सेफ रखना चाहता है। वो कुछ गलत नहीं है एक्चुअली। अगर आपका अंदर गिल्ट आ रहा है मतलब ना, उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। वो रिपेयर करना मतलब क्या है कि जो पहले जो चोट आया है ना, उस जो भी लॉसेस हुआ है ना, वो गिल्ट आ रहा है मतलब क्या है कि उसको रिपेयर करना चाहता है वो। आपका अंदर का जो पेन है ना, उसको रिपेयर करना चाहता है वो। तो उसको देखना पड़ेगा, उसको लेवलिंग करना पड़ेगा, और इसके बाद में उसका रूट क्या है देखना पड़ेगा, और उसको चैनलाइज करना पड़ेगा, उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। तभी आप उस इमोशन के साथ रह सकते हो, क्योंकि इमोशन का आप सप्रेस करके नहीं रह सकते आप। ज्यादा दिन नहीं रह सकते, वो अपने आप वो आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, आता ही जाएगा। So how to regulate this thing, man? Means यस, दैट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली। रेगुलेट करना मतलब क्या है कि आपको, जैसे मैं बोला, दो तीन चीज मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, कि जैसे कि आपको पहला ना, आपका जो डे रिचुअल्स है, अगर आप डे ट्रेडर हो या नहीं, तो जो भी आप ट्रेडिंग के देखने से पहले अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, आपके पास टाइम नहीं है, आप दिन में एक बार ट्रेडिंग देखते हो, तो देखने से पहले एक बार सोच लो कि जो जो पर्टिकुलर पोजीशन आपने बनाए हो, उसका बनाने के, उसका पीछे का जो आपका जो लॉजिक था, पीछे का जो टारगेट था, वो क्या था एक्चुअली, उसको एक बार रिकॉल कर लो। फिर वो पोजीशन को देखो, जाके देखो, तभी आपको लॉजिकल लगेगा। लेकिन अगर वो थॉट आपके पास नहीं है, आपने 5 दिन पहले एक पोजीशन बनाए थे, उस पोजीशन बनाए थे, और अभी आपने देखे कि वो रेड में चल रहा है, आपका है कैलकुलेटर है, आपके पास कैलकुलेशन है कि मुझे इतना तक वो स्टॉप लॉस है, उतना तक टारगेट है, और टारगेट तक जाने का तो पूरा 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 प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर आप उसको रिकॉल नहीं करोगे, तो क्या होगा ना, उस टाइम पे, अगर आप जिस टाइम पे देखोगे यहाँ पे 10% 5% लॉसेस में चल रहा है, आ रहा है, आ गया मतलब, मैं एक परसेंटेज बोल रहा हूँ, 10% तो बहुत ज़्यादा होता है एक्चुअली। बट अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे लॉसेस आ गया मतलब, आप इमीडिएटली वहाँ पे कुछ एक्शन ले लेते हो, इमीडिएटली वो कुछ इमोशनल जो भी चीज़ें से आ जाता है एक्चुअली वहाँ पे। प्रॉफिट में सेम, अगर आप देख लिए कि आपका पास 10% 20% प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट लेने के लिए, लेकिन प्रॉफिट आ गया 15% ऑलरेडी आ गया है, और आप देखते ही देखते मान लीजिए कि वो 2% नीचे आ गया, 2% नीचे आ गया, अभी क्या होगा इमोशन? कल आपने देखे थे 10% ऊपर था, अभी 2% नीचे आ गया, अभी क्या आएगा इमोशन? कट कर देता हूँ उसको। टारगेट आपका 20% है, लेकिन अब 10% जाने के बाद अभी 2% नीचे आ गया, कट कर देता हूँ उसको, इमोशन आ जाता है। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, ट्रेड ओपनिंग टर्मिनल ओपन करने से पहले, जिस टाइम पे ओपन करते हो पोजिशनल ट्रेडिंग, इन द सेंस आपको स्विंग ट्रेडिंग करते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, तो आप रिकॉल करो कि क्या आपका टारगेट था, क्या आपका स्टॉप लॉस था, उसके हिसाब से अगर स्टॉक या पोजिशन चल रहा है, नहीं चल रहा है। अगर आप डे ट्रेडिंग हो, तभी सेम आपका, तो डे टाइम में जो इमोशन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है, तो उस टाइम पे भी आपको, जिस जिस टाइम पे पोजीशन बनाए थे, उस टाइम पे उसको दिमाग में रख के, उसको पुट इट इन माइंड, रिकॉल इट एंड सेट इट, एंड देन ओपन योर टर्मिनल, और मतलब जो भी एक्शन लेना है वो लीजिए एक्चुअली। तो ये दो चीज मैं बोल दिया। और हायर लेवल में जो बोलता हूँ, मैं इससे पहले भी बोला था कि मेडिटेशन के बारे में, क्योंकि मेडिटेशन हम लोग का जो ब्रेन वेव है ना, उसको हायर लेवल में लेके जाता है। हायर हायर तो नहीं, मतलब ब्रेन वेव को लिमिट करता है, लेकिन हायर स्टेट में लेके जाता है उसको। जो सेंटरिंग, जो हम लोग का सेंटरिंग थॉट रहता है, उसका ऊपर अंदर वो लेके जाता है, और जो स्टेट ऑफ जो आपका माइंड है ना, उसको इंप्रूव करता है एक्चुअली वो। तो आप ज्यादा माइंडफुलनेस रह सकते हो, मतलब जो आप जो बोले ना यहाँ पे रेगुलेट, उस टाइम पे वो जो 60 सेकेंड का, सॉरी 80 मिली सेकेंड, यानी तो 6 सेकेंड का जो ड्यूरेशन है ना, उस टाइम पे आपका बॉडी जो भी रिएक्शन हो रहा है, उसको आप देख सकते हो, उसको आप महसूस कर सकते हो, उसको लेबल कर सकते हो, उसको नेम दे सकते हो, उसको टेम कर सकते हो। वो पॉज आ जाएगा आपका लाइफ में एक्चुअली, रिएक्शन से पहले। ठीक है। तो और एक यहाँ पे लास्ट जो भी है, जो भी अभी हम लोग बोले, बात की इमोशनल के बारे में, जो बहुत सारे लोग रहते हैं इमोशनल स्ट्रांग एंड इमोशनल फुल बोलते हैं, कि जो ट्रेडिंग में रहते हैं इमोशनल स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं है, इमोशनल स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है, या इमोशनल फुल हो तो आप इमोशनल बहुत इमोशनल हो तो आप ट्रेडिंग नहीं नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है एक्चुअली। आपको ट्रेडिंग, आपको इमोशनल को रेगुलेट करना आना चाहिए एक्चुअली, दैट्स इट। फिर से हो गया रे। हाँ जी, रगेश सर। हरीश क्या दबा था रवि? यार वो हाथ लग जाता है इधर। क्या दबा था रवि? ओके। सो यहाँ पे लास्ट जो भी है इमोशनल इंटेलिजेंस स्टेजेस में बोला, तो इसको जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा ना कि हाउ टू लाइक, इसको कंट्रोल कैसे, इसको रेगुलेट कैसे करें, तो ये जो स्टेट होता है ना, वो 3 स्टेज में जाता है।
पहला होता है आपका बॉडी में जो भी आपको आपको जो एनवायरमेंट से जो भी आपको इन्फ्लुएंस किया। एनवायरमेंट इन द सेंस मैं बोल दिया, जैसे कि आपका चार्ट हो गया, आपका जो पीएनएल हो गया, जो भी आप देख रहे हो, कोई किसी ने आपको कॉल कर लिए, यानी तो आपने एक पीएनएल देख लिया, किसी दोस्त का पीएनएल देख लिया, जो भी आपका बॉडी में आ गया ना, तो बॉडी का जो रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है एक्चुअली, हाउ योर बॉडी रिफ्लेक्टिंग, तो उसको आप महसूस करो, उसको देखो, वॉच करो कि बॉडी में क्या चेंजेस आ रहा है उस पर्टिकुलर इवेंट के साथ। मतलब इवेंट इन द इसको इवेंट में ये बोल रहा हूँ कि आपका पीएनएल, मतलब आपको पीएनएल डाउन जा रहा है, आपका एसएल हिट हो रहा है, या नहीं तो आपका जो भी डाउन में जा रहा है ना, आपका अगेंस्ट में ट्रेड जा रहा है, उस टाइम पे आपका बॉडी में क्या हो रहा है एक्चुअली, सेंसेशन क्या आ रहा है। पेट में, स्टोमक एरिया में बटरफ्लाई होना, हार्ट बीट बढ़ जाना, यानी तो यहाँ पे स्वेटिंग आ जाना, ये सब होता है एक्चुअली। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना, ये सब होता है ऑटोमेटिकली। बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको देखो। वंस यू नोटिस दैट ना, ऑटोमेटिकली वो स्लो डाउन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कूल डाउन हो जाएगा। सेकेंड है ब्रेथ में। ब्रेथ में क्या चेंजेस हो रहा है जिस टाइम पे आप ट्रेड में वो देख रहे हो ना, रिएक्शन होने से पहले। और ये मैं ट्रेडिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी जगह पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि ऑफिस में कुछ किसी के साथ अनबनी हो गया, आप गाड़ी में जा रहे हो, किसी के साथ बातचीत, थोड़ा ऊंची आवाज में बातचीत हो गया, रिलेशनशिप में आप देख सकते हो, फ्रेंड के साथ, यानी तो पार्टनर के साथ, किड्स के साथ, जो भी होता है ना उस टाइम पे। ठीक है, ब्रेथ में क्या चेंजेस हो रहा है, ब्रेथ ब्रेथ आपका कैसे जा रहा है, उसको वॉच करना, उसको देखो कि ब्रेथ स्वालो ब्रेथ हो रहा है, यानी तो आपका बहुत हैवी ब्रेथ हो रहा है, या आपका जो ब्लड है ना, ब्लड ब्लड आपका क्या होता है कि जो स्क्वीजिंग हो जाता है आपका स्टोमक से जाके हार्ट में, बॉडी, हैंड में, आपका जो लेग में पंप होना, वो सब शुरू हो जाता है। थोड़ा नमीनेस आ जाता है, जो आपका जो लेग एरिया में नमीनेस आ जाता है उस टाइम पे। ठीक है ना, तो बॉडी में, ब्रेथ में, और ये सब चेंजेस क्या हो रहा है देखना पड़ेगा आपको। और सेकंड, आपका जो थॉट है, वो थॉट को देखो, थॉट को वॉच करो, थॉट क्या बोल रहा है। पोजीशन कट कर दूं, उसको एवरेजिंग कर दूं, यानी तो इसको, मतलब जो स्टॉप लॉस का हटा दूं, स्टॉप लॉस को पीछे दूर ले जाऊं, ये जो जो थॉट्स आ रहे हैं ना, वो थॉट्स को वॉच करो। ओके, तो ये तीन चीज आप कर लिए ना, तो ऑटोमेटिकली आपका अवेयरनेस आ जाएगा, आपका जो ओवरऑल पिक्चर आपको दिखाई देगा कि अभी मार्केट में पुल बैक था, इसलिए नीचे आ रहा है, पुल बैक के बाद फिर से जा सकता है मार्केट ऊपर। अगर पुल बैक में आके एसएल होने के बाद अगर रिवर्सल होता है, उस टाइम पे मैं री एंट्री करूंगा, ये नहीं तो मेरा जो स्टॉप लॉस है, टारगेट है, जो भी हिट होगा मैं वेट करूंगा एक्चुअली, काइंड ऑफ दैट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया, लेकिन उसको, मतलब अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, वो कभी भी किसी भी जगह पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप। और लास्ट एंड लिस्ट, जैसे मैं बोला कि यहाँ पे मेडिटेशन, मेडिटेशन कंपलसरी रखना पड़ेगा आपको। अगर आप एक ट्रेडिंग, हाई हाई इंटेंसिव ट्रेडिंग आप लेते हो, डे ट्रेडिंग करते हो, तो आपको मेडिटेशन आपको पैकेज में, आपको जो रिचुअल्स पर रखना पड़ेगा, ताकि आपको जो ये जो 6 सेकंड में बोला ना, वो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस इतना इजी नहीं होगा आपको, क्योंकि आपको सबकॉन्शियस में इसको पता नहीं है कि ये ऐसा करने से होगा। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे आपका दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहा होगा कि हाउ दिस इज पॉसिबल। और ये जो क्वेश्चंस आ रहा है ना, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको क्वेश्चन कर रहा है एक्चुअली, कि ऐसा करने से हो जाएगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। थॉट्स को वॉच करना, हाउ विल वॉच माई थॉट। तो ये जो क्वेश्चंस आ रहा है आपका दिमाग में ना, क्योंकि हम लोग कभी इमोशनल इंटेलिजेंस का कोई प्रैक्टिस नहीं किया हम लोग। लेकिन जिस टाइम पे आप उसको लिखना चालू करोगे, थोड़ा थोड़ा बहुत लिख लो आप, मतलब अगर ऐसा इमोशन आ रहा है तो उसको लिख लो, ऐसा थॉट्स है उसको अपने पेपर में उसको नोट डाउन कर लो, तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली वो जब बाहर आ जाएगा, एक्सप्रेस हो जाएगा ना, वो ऑटोमेटिकली मतलब डाउन हो जाएगा वो। ठीक है, तो मेडिटेशन सबसे लास्ट जो है, वो मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मेडिटेशन ही आपको सब कुछ दिला, मतलब जो मेंटेन करना है, वो सब मेडिटेशन ही आपको कर सकता है एक्चुअली। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था मेरा, इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसा मैनेज करना, कैसे रेगुलेट करना। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है, आई एम रेडी टू डिस्कस थोड़े टाइम के लिए, और इसको कंक्लूड करेंगे। अगर थोड़ा ज़्यादा लोग रहते तो हम लोग और थोड़ा एक्सटेंड कर सकते थे, बट आज तो मतलब लोग थोड़ा कम है एक्चुअली। लास्ट टाइम कुछ 20-25 पीपल ज्वाइन किए थे, बट एनीवे कुछ क्वेश्चंस है तो हम लोग बात कर सकते हैं। गिरीश, अनिल, ममता जी आप कहाँ से? कुछ बोले नहीं आप। I am from Barampur, Odisha. ओके ओके, गुड गुड, गॉट इट।
आप ट्रेडिंग करते हो इससे पहले? हाँ, मैं 2-3 साल से कर रही हूँ। अच्छा, गुड। अच्छा, आपने शायद हैदराबाद ग्रुप में ज्वाइन किया ना? हाँ हाँ, ओके, गुड उत्कल गुड। यूथ एसोसिएशन। हाँ, गॉट इट। जी गिरीश जी, आप कुछ बोल रहे थे? अ, नहीं मैं नहीं मतलब वही पॉइंट्स ही आपने जो है वो मैं चेक कर रहा था। मैं ये शेयर कर दूंगा, ये वीडियो और ये जो स्लाइड है ना, शेयर डेक हम्म, शेयर कर दूंगा, आप उसको देख सकते हो। मैं यहाँ पे एक ओके। चीज बोलना चाहता हूँ कि फोकस जी। एंड अवेयरनेस, ये दोनों चीज के बारे में हम लोग और थोड़ा हम्म कभी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बार बोलते हैं ना हम लोग, यहाँ पे और एक मिसकंसेप्ट है कि ट्रेडिंग में हाँ, फोकस रहना चाहिए एक्चुअली। हम्म लेकिन मैं इसको बोलता हूँ ना, फोकस आप एक चीज में बोलता हूँ, जैसे कि अगर आप जंगल में जा रहे हो, आप जस्ट वॉकिंग इन ए जंगल एक्चुअली, ओके, और आपके पास हम्म एक टॉर्च लाइट, एक फोकस लाइट है, आपको कैसा लगेगा? हम्म लेकिन मैं अगर अगर आपको क्या करूँ, फ्लड लाइट दे दिया, मतलब 4-5 हेलोजन बड़ा बड़ा फ्लड लाइट लगा दिया आपके पीछे, अब बताओ, वो जो फियरनेस था आपका जंगल में जाने के टाइम पे, जो फियर था आपका, एक फोकस हाँ, लाइट लेके आप जा रहे थे, एक टॉर्च लाइट लेके जा रहे थे, अगर मैं आपको फ्लड लाइट लगा दिया, पूरा बड़ा बड़ा लाइट लगा दिया, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा आपको? फियर निकल जाएगा। ठीक है ना? तो फोकस हाँ, होके आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि फोकस हो गए मतलब आपका फिर से सबकॉन्शियस आपको वो ट्रैप में डालेगा, आपको इमीडिएटली ले हम्म, लेगा, इजीली ले लेगा। ऑडियो आपको ब्रॉडर व्यू में देखना पड़ेगा मार्केट में एक्चुअली क्या हो रहा है। जैसे इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आया था ना, कि मैं 30 मिनट में एनालिसिस करता हूँ, 5 मिनट में एंट्री करता हूँ, हम्म, तो या आप फोकस हो, सही है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर आप इससे पहले 4 आवर डेली, वीकली, मंथली एनालिसिस करके आए हो, देन आप 30 मिनट में हम्म पहुंचे हो ना, मतलब आप हम्म वहां पर फ्लड लाइट लेके चल रहे हो आप, मार्केट का हम्म ब्रेड्थ आपको पता है पूरा कंप्लीटली। तो उस टाइम पे क्या है हम्म ना, अवेयरनेस आपको, एक्सपांड परसेप्शंस, आपको जो परसेप्शन है ना वो, क्योंकि परसेप्शन इज प्रोजेक्शन, आपका जो भी परसेप्शन रहता है ना वही आपका प्रोजेक्ट होके आता है एक्चुअली। जब जब तक आपका या परसेप्शन ब्रॉड नहीं होगा ना, तब तक आप एक फोकस, एक नैरो अटेंशन लेके चलोगे आप, तो ट्रेडिंग में सिर्फ फोकस होने से नहीं होगा काम। हम्म तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। जैसे मैं बोला, इससे पहले भी पूछा था कि इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए या रेगुलेट करना चाहिए, हम्म राइट? ठीक से सिमिलर यहाँ हम्म पे, फोकस होके आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि फोकस होके आप कुछ लर्निंग कर रहे हो उस टाइम पे। अभी अब हम पढ़ाई कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, यू कैन बी फोकस, ताकि हम्म आपको इसके बारे में, इस कंटेंट के बारे में आपको पता चलेगा। लेकिन जिस टाइम पे आप फील्ड में हो, जिस टाइम पे आप मतलब बाहर हो, आप ग्राउंड ग्राउंड रियलिटी आपको जानना है, तो उस टाइम पे आपको फ्लड लाइट लेके चलना पड़ेगा, आपको अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा कि ओवरऑल मार्केट में क्या हो रहा है एक्चुअली। नहीं तो आप ट्रैप हो जाओगे। या आप देख रहे हो मार्केट आराम से हल्लू 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 ऊपर जा रहे हैं, ऑल ऑफ सडन डाउन मूव आ गया, 200 या 300 पॉइंट, सेंसेक्स में 500 पॉइंट में एक 15 मिनट कैंडल में दे देगा, राइट? क्यों होता है? क्योंकि ओवरऑल ब्रेड अगर मार्केट का डाउन है ना, तो जो हल्लू हल्लू ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर जा रहे हैं फिर बेच रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं बेच रहे हैं, ऑल ऑफ सडन पूरा जो सब कोई मिलके बेचेंगे एक बार, मार्केट जाएगा। तो ये आज का टॉपिक था। आई डोंट नो कि आपको कितना क्लैरिटी मिला, कितना कंफ्यूजन हुए, आप कितना कंफ्यूज हुए, आई डोंट नो। आई एम, इफ आई एम गेटिंग कंफ्यूज, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये थोड़ा सा हायर टॉपिक है एक्चुअली, जो कि मेरा इंटेंशन नहीं था इसको, इस बारे में बात करने के लिए। लेकिन मैं सोचा कि देखिए, ऑलरेडी हम लोग मार्केट में टाइम दे चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, राइट? सो एटलीस्ट हम लोग का जो इमोशनल है वो हम लोग को पता है, वी आर ऑलरेडी प्लेइंग इन दैट, राइट? तो इसलिए आई थिंक कि ये तो कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा। और जैसे मैं बोला, 3 स्टेप आपको बोला, पहला आपका बॉडी में रिफ्लेक्ट कहाँ पे हो रहा है, उसको देखिए, एनालिसिस करिए एक ट्रेड के टाइम पे। यानी तो ट्रेड, अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग हो या तो पोजिशनल हो, तो आप उस टर्मिनल को ओपन करने से पहले, आपका जो पोजीशन को देखने से पहले आप सोच लो कि मैं, वाई आई टुक दिस ट्रेड एक्चुअली, ठीक है? और सेकंड क्या है कि आपको जो ब्रेथ, आई मीन हाउ यू आर ब्रीदिंग, मतलब जो ट्रेडिंग के टाइम पे आपका ब्रीदिंग कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको थोड़ा रेगुलेट करो, देखो एक्चुअली, वॉच करो, जस्ट वॉच करो, तो ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो जाएगा। और 6 सेकंड, जो आपको जो मैं बोला 6 सेकंड फॉर्मूला, वो 6 सेकंड से पहले आप रिएक्ट मत करो, थोड़ा देखो कि रिएक्शन क्या हो रहा है, ये 6 सेकंड में क्या क्या रिएक्शन हो रहा है, बॉडी में, माइंड में, थॉट्स में, ब्रीथ में क्या क्या हो रहा है, उसको थोड़ा वॉच करो। और स्लोली स्लोली अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, इट विल बी पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग एक्चुअली, और ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा।
और सेकंड, जैसे मैं बोला, लास्ट नॉट द लिस्ट, मेडिटेशन. ट्राई टू इंक्लूड मेडिटेशन इन योर लाइक एवरीडे ट्रेडिंग. दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. मेरा जो लास्ट ईयर का 365 डेज का जो मेडिटेशन ये था, ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट एवरीडे मेरा एवरेज आया था, जो कि ऑलमोस्ट 80-90 आवर्स के आसपास मेरा टोटल ऑल ओवर ईयर्स में हुआ था एक्चुअली. मेरा कुछ सब्सक्रिप्शन है, मेडिटेशन के लिए सब्सक्रिप्शन है, वहाँ पे वो दिखाता है डैशबोर्ड में कितना आवर्स का मैं मेडिटेशन किया क्या किया, वो दिखाता है वहाँ पे. तो वो मेरा है एक्चुअली, वो कोटा है मेरा एक्चुअली. यू डू मेडिटेशन मतलब यानी आप कुछ करते हैं क्या? हाँ जी. यू डू मेडिटेशन मीन्स ऑफ कोर्स. प्रोग्राम्स है ना? ओके. हाँ, मैं खुद भी ज्वाइन किया हूँ, मेडिटेशन प्रोग्राम में ज्वाइन किया हूँ, तो वहाँ पे मैं करता हूँ. और मेरा भी खुद का भी मेडिटेशन मॉडल है, तो वहाँ पे भी मैं करता हूँ एक्चुअली. ओके. तो अगले बार हम लोग फिर से मिलेंगे, और अगले बार और एक श्योर. कुछ टॉपिक के साथ. और नेक्स्ट टाइम हम लोग मेडिटेशन के बारे में थोड़ा बात करेंगे, कि मेडिटेशन के बारे में बहुत सारे हम लोग का थोड़ा गलत इन द सेंस में, गलत में नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ मिसकंसेप्शन है एक्चुअली. मतलब मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, कैसा करना चाहिए. एक एक एंजाइटी है उसका अराउंड, कि मेडिटेशन कैसा करना, क्या करना. मैं तो बैठ नहीं सकता हूँ, मैं तो बैठते ही दिमाग में कुछ थॉट्स आ जाता है. मैंने हाउ आई कैन डू मेडिटेशन, 30 मिनट मेडिटेशन, 20 मिनट मेडिटेशन, 1 आवर मेडिटेशन, हाउ विल डू दैट वन. तो ये सब एंग्जाइटी है हम लोग का दिमाग में. तो हम लोग ना नेक्स्ट टॉपिक जो रखेंगे, मेडिटेशन के अराउंड रखेंगे, और प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा मेडिटेशन को, कैसा करना, क्या करना. 2-3 टाइप का मेडिटेशन मैं आपको बताऊंगा, तो उसको या. प्रैक्टिस करेंगे हम लोग. श्योर श्योर. ठीक है. Okay. Yeah. Thank you, sir. Have a या nice day. थैंक यू ममता, एंड थैंक थैंक यू यू सर, अजय. थैंक यू आई सर. थिंक दो हैव अ तीन नाइस तो डे. थे, So, और प्रणब भी था, yeah. लेकिन वो प्रणब, यान शायद कुछ Okay. काम था यान का. तो हम लोग Yeah. नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, ठीक है. Yeah. Thanks, sir. या Had a थैंक good यू. session. या Thank you. थैंक यू. इट वाज अ गुड सेशन सर. थैंक यू. या थैंक यू.